Hello students, today we will discuss the very important concept that is database schemas. First of all, we should understand what is database schemas are, right? So here some definitions are given here. Database schema is nothing, it's a description of the databases, ठीक है? मतलब जो database आप यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में उसको describe करना, this is called the schemas, right? We can also call the metadata also, right? And it covers the aspects of the database, like for example, the name of the record, data items means type of data items it will keep in the database. Some constant must be there. Maybe it may be the primary key or it may be the candidate key. It will be a unique key. Whatever the means constant you want to apply it on the database schemas. Database schema not frequently changed means whenever you decide that I will make this type of schema, then that schema is fixed and it is useful for any applications. It's not like you are changing the database schema every time whenever you want to access the database, right? So it is fixed and it's not fixed. You cannot say that is it fixed, but not frequently changed. It's not changed frequently, right? सो स्पेसिफाई व्हेन ए न्यू डेटाबेस इज डिफाइंड। जब भी आप नया डेटाबेस डिफाइन करेंगे तो आपको नई स्कीमास बताना पड़ेगा, उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो मेटा डेटा इज इक्वल टू डी बी एम एस कैटलॉग। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो आपका मेटा डेटा होता है ये आपका जो डी बी एम एस का कैटलॉग कैटलॉग क्या होता है, विच कीप्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा विच इज कॉल्ड द मेटा डेटा, राइट? So this is the facts about the database schema. Now talk about the schemas and sub-schemas. So schemas is nothing, it's a description of the entire database. ठीक है, जितना भी database आप यूज़ कर रहे हैं उन सब के बारे में उसको डिस्क्राइब करना is called a schema. Now talk about the sub-schema. Some schema is something different from the schema. The difference is that as you see here, a file that contains a description of सबसेट ऑफ द डेटा। एक तो होता है कि आप जो डेटाबेस ओरिजिनल है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक होता है डेटाबेस के बाद जो सबसेट है उस डेटाबेस का। अच्छा, सबसेट की जरूरत पड़ी क्यों? सबसे पहली बात तो ये है भाई, जो आपका एंटायर डेटाबेस होता है, अब जरूरी नहीं कि आप वो एंटायर डेटाबेस जो भी यूजर्स हैं उसके वो सारा का सारा जो आपका डेटाबेस है उसको यूज़ करें। इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें से कुछ पोर्शन होता है या कुछ ऐसी टेबल्स होती हैं जो पर्टिकुलर यूजर उसको यूज़ करता है। तो हम करते क्या हैं, जो हमारा इंटायर डेटाबेस होता है उसका एक सबसेट बनाते हैं, ठीक है? एक सबसेट बनाने के बाद फिर वो सबसेट ऑफ डेटाबेस जिस यूजर को यूज़ करना है वो उसको यूज़ करता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द सब स्कीमा, राइट? We will understand with the help of diagram also, but a file that contains इस टाइप का जो डिस्क्रिप्शन है, जो सबसेट ऑफ द डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम फाइल के अंदर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं सब स्कीमा। द फाइल दैट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सबसेट ऑफ द डेटाबेस एंड आइडेंटिफाइज विच यूजर कैन परफॉर्म मॉडिफिकेशन। और ये भी साथ में आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा यूजर उस जो सबसेट ऑफ द डेटाबेस है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन परफॉर्म करने वाला है, ठीक है? मॉडिफिकेशन ऑन द डेटा आइटम इज दैट सबसेट, right? So this is the called sub-schema. Now talk about the sub-schema. We can understand with the help of figure. The topmost it's a DBMS, Database Management System. वहाँ से हम स्कीमा बनाते हैं। अब स्कीमा को क्या करते हैं, हम पार्ट वाइज उसको ब्रेक करते हैं। वी फॉलो द मॉड्यूलर अप्रोच। वी डिवाइड द स्कीमा इन द सब स्कीमा। You can see here there is just sub schema 1 which is used by the user 1, and we also have a sub schema B, means the subset of the original schema, and this sub schema is used by the user 2 and user 3, and in the same manner rest the sub schema will be there and it is used by the various users, right? Now database instance क्या होता है? डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, डेटाबेस तो आपका डेटाबेस में स्टोर है, बट कोई जब हम एक्सेस करते हैं एट एनी पर्टिकुलर टाइम, राइट? तो डेटाबेस से जो डेटा हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेस करते हैं दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस इंस्टेंस, राइट? So database data in the database at particular time is called the
database instance. Instance is nothing, it's a snapshot, right? And it's a state of the database, right? And database can be in the various state. It can be in the state of database I. You can see here I means any, it is defining any state, right? And after some modification it can be in the different state, right? State can be, it can be in the reading state, it can be in the writing state, means talking about the inserting the values, deleting the values, updating the values, and the state will be changed frequently as the in the databases, right? Now, the most important topic is data modeling and ER model, that is entity relationship model, and this is very important. सबसे पहले इसको करने से पहले हम समझते हैं कि ER मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। डेटाबेस, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको जो सारे जो डेटाबेस आपने एनालिसिस करी है उसको डायग्रामेटिकली आप उसको बनाते हैं। डायग्रामेटिकली बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि अब वो जो 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 आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें जो डेटाबेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में है। दैट पिक्चर्स आर स्टैंडर्ड। उन सब पिक्चर के बारे में सबको पता है कि इसका क्या मतलब होता है, इसको आप कैसे बताना चाह रहे हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एनी यूजर कैन ईजिली एनालाइज कि जो आप नोटेशन यूज़ कर रहे हो उसका क्या मतलब है, उसको देख के समझा जा सकता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड ER मॉडल। जो भी हम पढ़ेंगे दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जो आपकी जो एंटिटीज़ हैं आपके डेटाबेस में वो आपस में कैसे लिंक्ड अप है उसके बारे में हम बात करेंगे। ER डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अब ER डायग्राम आप तभी बना सकते हैं जब आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में, उसके नोटेशंस के बारे में, जो एक स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं उनके बारे में पता हो, देन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। और उस डायग्राम को पढ़ने के बाद कोई भी देख सकता है मतलब कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपका जो रिलेशनशिप है एंटिटी के बीच में वो कैसे है, उसके बीच में कैसे, वो जो है केवल एक आप डायग्राम के थ्रू ही आप उसको समझा सकते हैं, किसी को किसी बताने की जरूरत नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड है, राइट? तो लेट्स सी, वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ER डायग्राम कि ER डायग्राम के सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो एंटिटी आती है, ठीक है? अब एंटिटी में कई सारे एंटिटी हम पढ़ेंगे। वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है ना? जनरली सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द वीक एंटिटी की वीक एंटिटी किसे कहते हैं। दूसरा आता है आपका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एट्रीब्यूट्स में जो है आप पढ़ेंगे कि की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, मल्टी वैल्यूड कौन कौन से होते हैं, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, ठीक है? रेस्ट आता है आपका रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स की आप बात करते हैं कि दो एंटिटी के बीच में कितने टाइप की पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकती है। तो जैसे आपने पढ़ भी रखा है कि 1 to 1 हो सकती है और 1 to many हो सकती है। मीन्स एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको कोई एक टीचर पढ़ा रहा है तो ये कैसा हुआ, मैनी टू वन, ठीक है? अगर इसका उल्टा कहें, कई सारे टीचर्स कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो ये कैसी रिलेशनशिप हुई, मैनी टू मैनी। वी विल आल्सो सी द एग्जाम्पल्स, बट राइट नाउ थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि रिलेशनशिप को कैसे हम समझेंगे, एट्रीब्यूट्स को क्या समझने के लिए हम अभी देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, और उसको आपको फिर नाउ टॉक अबाउट द एंटिटीज एंड द एट्रीब्यूट्स, राइट? एंटिटी पता है आपको कि एंटिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होता है। जितने भी टेबल्स में आप, जितने भी आप टेबल्स के आप बना रहे हैं और जिसके लिए आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, दे ऑल आर द एंटिटीज, राइट? तो एंटिटीज आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और थिंग दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस, जिसको आप डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, जिसके करस्पॉन्डिंग आप टेबल बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इज वॉट, एम्प्लॉय इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है? फॉर यूजिंग द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यूजिंग द एम्प्लॉय एंटिटी, you can means design the database, right? And you can also put the facts about the employees, right, in the form of column names, right? Employee name, employee ID, employee department, employee date of birth, right? Everything you can define with the help of entity. Now talk about the attributes. Attributes is nothing, it's a properties. Properties का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉई है तो उसका नाम है, नाम क्या हुआ, नेम क्या हुआ, उसका एड्रेस क्या हुआ, उसका SSN नंबर क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जेंडर क्या हुआ, बर्थ डेट क्या हुई, ये क्या हुआ इसके। एम्प्लॉय तो एक सिंगल एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हुए आपके, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, राइट?
तो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब इट, एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। एंटिटी आप एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से क्या पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो आप क्या करते हैं, उसके एम्प्लॉय जो आपकी एंटिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है, हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स इज डिफरेंट, एंटिटी इज डिफरेंट। तो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय एंटिटी में है नेम हो सकता है, एसएसएन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, जेंडर, बर्थ डेट, दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स। नाउ टॉक अबाउट द third point, a specific entity will have the value for each of its attribute। हर एक एंटिटी की क्या होगी, एक अपनी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय एंटिटी में है, उसका नाम हो, जैसे नेम इज इक्वल टू मुकुल हो गया। ठीक है, हर एंटिटी का क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं है तो उस एंटिटी का मतलब ही नहीं है, उस एट्रीब्यूट का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हर एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू अवश्य होगी। एसएसएन नंबर है तो नंबर उसकी कोई वैल्यू होगी। एड्रेस इज इक्वल टू 123 है तो 123 इज व्हाट इज द वैल्यू, राइट। तो वैल्यू, every attribute will be the value, right? Now each attributes, these are the facts of the attributes and entities। now ये difference clear होना बहुत जरूरी है कि attributes किसको कहेंगे आप और entity किसको कहेंगे, right? now in the next line, each attribute has a value set or data type associated। for example, अब हर attributes का अपना एक डेटा टाइप जरूर होगा, वैल्यू सेट जरूर होगा। जैसे भाई आपको पता है कि अब हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। एड्रेस इज इक्वल टू 123, अब 123 क्या है, कोई टाइप होगा ना, कोई डेटा टाइप होगा। जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता है INT लेना है कि हमें स्ट्रिंग लेना है, ताकि आप उसी टाइप की वैल्यू को उसके अंदर स्टोर कर सकें, है ना। तो यहाँ पर भी हमें डेटा बेस को बताना पड़ता है कि भाई ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसका टाइप है जिसके अंदर ये वैल्यू रखी जाएगी, राइट। ये हर एट्रीब्यूट का क्या होता है, अपना एक वैल्यू सेट होता है, या इसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स, राइट। नाउ अब हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे। तो चार तरीके के एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं इसके अंदर। एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब, एट्रीब्यूट होता क्या है, एट्रीब्यूट मैंने बताया आपको, एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। फर्स्ट वन इज द की एट्रीब्यूट, सेकंड वन इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड वन इज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एंड फोर्थ वन इज द derived एट्रीब्यूट। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द सिंपल, सिंपल एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर सिंपल नहीं है बट सिंपल जो एट्रीब्यूट आपका होता है वो क्या होता है, ईच एंटिटी हैज़ अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू। पहला क्या होता है कि जो सिंपल एट्रीब्यूट आपका है उसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एंटिटी की एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू रहेगी, यानी कि कोई ना कोई एक ही वैल्यू रहेगी, एक से ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नेम है तो एक ही नेम में आपका एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। नेम सिर्फ एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एसएसएन नंबर और जेंडर, जेंडर क्या हो सकता है, इट कैन बी द मेल और इट कैन बी द फीमेल। एसएसएन नंबर क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन का एक ही एसएसएन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एसएसएन नंबर नहीं चलता है, हमारे आधार नंबर चलता है। तो पूरे इंडिया में हर आदमी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आधार नंबर। तो ये क्या हो जाए आपकी सिंपल, सिंपल क्या हो जाएगी, ईच एंटिटी हैज अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू, राइट। नाउ टॉक अबाउट द कंपोजिट वैल्यू, द एट्रीब्यूट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो करी जा रही है ये एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग है। ये एंटिटी तो हो गई हमारी, एंटिटी इज नथिंग एन ऑब्जेक्ट, बट अब जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, राइट। सो नाउ कंपोजिट की बात करें, द एट्रीब्यूट मे बी कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। कोई एट्रीब्यूट आपका कई सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बन सकता है। जैसे एड्रेस है, अब एड्रेस तो आपको क्या कहते हैं, आप किसी के बारे में आप कहते हैं कि एड्रेस है, तो एड्रेस कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब एड्रेस में भाई उसका एड्रेस का लेन नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, मोहल्ला नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, तो ये क्या होगा, उसका कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे नेम है, अब नेम में क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका मिडिल नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है। तो दिस आर द कॉल द नेम इज द एट्रीब्यूट, ओके। बट अब उस नेम को जो डिफाइन करता है वो कहलाता है आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट। नाउ टॉक अबाउट द मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, एन एंटिटी मे हैव मल्टी वैल्यूज फॉर दैट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं। जैसे कलर ऑफ द कार और प्रीवियस डिग्री ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कलर का कार है, अब कार तो एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब उसका क्या हो सकते हैं, कार में उसका नंबर है, नेम प्लेट है, उसका गियर है, मॉडल कौन सा है,
तो उससे रिलेटेड आपकी कई सारी मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं। दीज आर कॉल्ड द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, राइट। की एट्रीब्यूट के बारे में हम जानेंगे। की एट्रीब्यूट कैन यूनिकली, अब की एट्रीब्यूट क्या होता है कि हर एक जो आपका जो है जो मतलब एट्रीब्यूट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। जैसे आपका स्टूडेंट आईडी नंबर या स्टूडेंट का रोल नंबर, पूरे यूनिवर्सिटी में हर एक आदमी का एक यूनिक रोल नंबर होता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ एनी की, ठीक है। द की एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए की एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रोल नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टूडेंट, लाखों लाखों लोग हो सकते हैं स्टूडेंट, बट हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक की चाहिए, ठीक है। तो की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओवल सेम एज अदर, ठीक है। इसको हम कैसे की एट्रीब्यूट को, अभी उसके डायग्राम को भी देखेंगे। तो की एट्रीब्यूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ओवल शेप, राइट। तो ओवल सेम एज अदर एट्रीब्यूट्स, हाउएवर द टेक्स्ट ऑफ द एट्रीब्यूट इज अंडरलाइन, ठीक है। और जो की एट्रीब्यूट होगा, की एट्रीब्यूट जब आप लिखेंगे, अभी हम देखेंगे, जैसे मान लिया कि स्टूडेंट आईडी, आईडी क्या हो, स्टूडेंट आईडी क्या की एट्रीब्यूट हो गई, और उसको डिफाइन, उसको उसके लिए नोटेशन कौन सा यूज होता है? ओवल। और अगर कैसे बताएंगे कि ये की एट्रीब्यूट है, उसके नीचे अंडरलाइन करें, तो आप समझ जाएंगे कि ये की एट्रीब्यूट है। यानी ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का ये एक हमारा एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। You can better understand with the help of this diagram. Student is the entity, and student के हमारे अलग अलग attributes हैं, like roll number, like name, age and address, but roll number is underlined, तो अपने आप में डिस्क्राइब्ड है, सेल्फ डिस्क्राइब है कि ये हमारा क्या है, ये एक की एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट क्या है? स्टूडेंट है, एक एंटिटी है। स्टूडेंट का क्या है? एक एड्रेस हो सकता है। अब एड्रेस में क्या है? एड्रेस में पिन नंबर है, स्टेट नंबर है, स्टेट है, कंट्री है, तो उसके क्या हो सकते हैं? कई सारे मतलब वैल्यूज हो सकती हैं एड्रेस की भी, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नाउ मल्टी वैल्यूड क्या होता है? मल्टी वैल्यूड को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे मल्टी वैल्यूड और डिराइव दोनों को एक साथ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों पहले मल्टी वैल्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इज नोन एज द मल्टी वैल्यूड। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके एक से ज़्यादा वैल्यूज हो, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल वैल्यूज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डबल ओवल, इसको हम डबल ओवल, रिमेंबर नोटेशन सिंबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंबल में गड़बड़ी है तो ना तो आप सही से ईआर डायग्राम बना सकते हैं, और अगर ईआर डायग्राम सही नहीं बना तो आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते तो वो आपका प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि शुरुआत डिजाइनिंग है डेटाबेस की, उसके लिए आपका जो ईआर मॉडल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो an attribute that can hold multiple values is known as the multi-valued attribute. It is represented by the double oval. सिंगल ओवल में किसको करते हैं? हम सिर्फ की एट्रीब्यूट्स को करते हैं, ठीक है, या सिंपल एट्रीब्यूट्स को करते हैं। इन ई आर डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर। एक मतलब पर्सन है, उसके एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर, आधार नंबर एक हो सकता है, तो वो तो आपका हो गया प्राइमरी की, वो तो होगा आपका की एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन एक दूसरा फैक्ट ये भी तो है ना कि एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक जियो का है, रहेगा आपके पास वोडाफोन का या एक्स वाई किसी नेटवर्क का है, एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मल्टी वैल्यूड, ठीक है। तो सो द फोन नंबर इज एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यूड, राइट। नाउ डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स को मतलब है कि जो ऑलरेडी कोई एट्रीब्यूट्स हैं उनसे आप डेराइव्ड होते हो, आप डेराइव्ड करते हो। जैसे अब किसी की एज निकालनी हो, तो एज निकालने के लिए आप क्या करोगे? डेट ऑफ बर्थ से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी एज क्या है। तो एज क्या हुई आपकी? वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स हुआ, मतलब जिसको आप डेराइव कर सकते हो, जिसका डेरिवेशन पॉसिबल है, तो उसको आप क्या कहोगे? डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। और उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ सिंगल प्योर ओवल और any circle, but it will be shown by the dotted oval, right? तो derived attributes क्या definition हुआ? Derived attributes is one whose value is dynamic. Yes, dynamic का मतलब क्या हुआ कि any time you can derive the value. किसी के पास डेट ऑफ बर्थ बताया, आपको तुरंत एज पता चल जाएगी, ठीक है। डायनेमिक एंड derived from another attribute, दूसरे एट्रीब्यूट से आप डिराइव कर रहे हो। जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ये एक एट्रीब्यूट है, और इससे हम क्या डिराइव कर रहे हैं? अपना एक
derived attributes. ठीक है, तो it is represented by the dashed oval, what we call the dashed oval in your diagram, right? For example, person age is derived attribute as it change over time, डायनामिकली चेंज हो रही है, जैसे जैसे चेंज हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी एज को डराइव कर सकते हो। तो इट चेंज ओवर टाइम एंड कैन बी डराइव्ड फॉर अनदर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कहाँ से? डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक हमारी एक आइडेंटिटी है जिसका स्टूडेंट फ़ोन क्या हो जाएगा, हमारा फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यूड है, आपको बताया था मैंने, तो इसलिए वो डबल ओवल है। स्टूडेंट नेम सिंगल रहेगा आपका। एज आपका क्या डराइव्ड है, कहाँ से? डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ अपने आप में एक एट्रीब्यूट्स है, और स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की है। तो इस फिगर में आपको सारी चीज़ें दिखनी होगी। प्राइमरी की एट्रीब्यूट हो गया आपका, डराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, सिंगल एट्रीब्यूट हो गया, एंटिटी होगा, और आपका मल्टी वैल्यूड हो गया। ठीक है, तो दिस सिंगल फिगर कैन एक्सप्लेन ऑल द अदर एट्रीब्यूट्स, राइट? नाउ एंटिटी टाइप्स एंड की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एंटिटी के टाइप क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एंटिटी विद सेम बेसिक एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप्ड। ऐसी एंटिटीज जिस जो एक साथ एक तरीके, जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट है, तो अब स्टूडेंट में क्या होता है, अलग स्टूडेंट के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग पर्सन अलग अलग होता है, लेकिन अब सारी चीज़ों को एक साथ ग्रुप आप कर सकते हो क्योंकि वो सारे क्या है, आपके सेम बेसिक एट्रीब्यूट्स के साथ है वो, राइट? तो इसको क्या कहोगे आप? एंटिटी विद सेम बेसिक एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप्ड। फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉय एंटिटी टाइप और अ प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप। भाई प्रोजेक्ट है जो सेम टाइप के प्रोजेक्ट हैं उनको एक साथ ग्रुप करना, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप एंड एंटिटी टाइप एक साथ रखना। ठीक है, an attribute of an entity type for which each entity must be unique value। ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट और एंटिटी का जिसके लिए ईच एंटिटी मस्ट, हर एंटिटी का यूनिक वैल्यू हो, इज कॉल्ड द की एट्रीब्यूट। हमने देखा भी है पीछे। एक की एट्रीब्यूट में भी कंपोजिट। अब जो की एट्रीब्यूट है वो कंपोजिट भी हो सकता है। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कंपोजिट क्या, किसको कहोगे आप? कि आप एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, अब की वैल्यू जो आपकी है वो भी कंपोजिट हो सकती है, जैसे व्हीकल नंबर। तो व्हीकल नंबर क्या हो जाएगा? व्हीकल नंबर तो एक यूनिक होता है, किसी दूसरे के पास अलॉट नहीं होता है। ठीक है, अब व्हीकल नंबर इज द की ऑफ द कार एंटिटी टाइप विद कंपोजिट कंपोनेंट। नंबर किस कौन सा नंबर क्या है उसका, उसका स्टेट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? व्हीकल नंबर एक यूनिक है, वो तो की एट्रीब्यूट है, लेकिन उसका नंबर क्या है, वो किस स्टेट की गाड़ी है, ये क्या हो जाएगा? फिर से उसके डायमेंशनल एक वैल्यूज आने लगी, कई सारी वैल्यू आने लगी। तो एक कंपोजिट जो की एट्रीब्यूट्स है वो भी कंपोजिट हो सकता है। ठीक है ना? तो दिस इज द एंटिटी टाइप्स एंड की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंटिटी टाइप का मतलब सेम टाइप की चीज़ों को आप एक साथ ग्रुप में रख सकते हैं। एंटिटी इज द डिफरेंट थिंग, एंटिटी टाइप इज द डिफरेंट थिंग, की इज द डिफरेंट थिंग, की एट्रीब्यूट इज द डिफरेंट थिंग। इन सब में अंतर, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। नाउ अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप। सबसे पहली बात है कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है? डायमंड शेप में हम रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ईयर डायग्राम। इट शोज अ रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। वन टू वन पहली चीज, दूसरा वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन क्या मतलब क्या है कि पर्सन यहाँ पर एक हमारी एक एंटिटी है और एक पासपोर्ट एक एंटिटी है, और बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? हैश। ठीक है, यानी वन पर्सन हैज़ वन पासपोर्ट नंबर, या इसका वाइस वर्सा मैं बोलूँ तो वन पासपोर्ट कैन बी इशूड टू वन पर्सन। इसका वाइस वर्सा भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक डायरेक्शन में हम देखते हैं। ठीक है, तो वन ये कैसे यहाँ पर वन टू वन के सिवा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ना तो वन टू मेनी की है, ना मेनी टू वन की है, केवल वन टू वन की है। वन पर्सन हैज़ अ वन पासपोर्ट एंड वाइस वर्सा, वन पासपोर्ट कैन बी इशूड टू single person, that is one person. This relationship is called वन टू वन रिलेशनशिप। और इस टाइप की एंटिटी अगर आपके प्रोजेक्ट में आती है, आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, तो आपको रिलेशनशिप के थ्रू बताना पड़ेगा कि यू हैव टू यूज द वन टू वन और वन टू मैनी और मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, राइट? तो यू हैव टू मिस एक्सप्लेन, you have to consider any one of the relationship and then draw and design your database, right? Now talk about the many to one, one to many relationship.
कस्टमर एंड ऑर्डर, दे आर टू एंटिटी, राइट। अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, प्लेस्ड। वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर, ठीक है। एक कस्टमर है, वो कई सारे ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। उसने शूज़ को भी प्लेस कर दिया, उसने अपना एक किसी वॉच को प्लेस कर दिया, कर सकता है। लेकिन मेनी ऑर्डर, कई सारे जो ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे जो ऑर्डर जो दिए जा रहे हैं, वो किसी एक कस्टमर के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कई सारे, ऐसा नहीं कि मतलब जो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, उसको, उन ऑर्डर को देने वाले भी बहुत सारे हैं। भाई एक कस्टमर है, दे सकता है कई सारे ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और हो सकता है एक ही दे, और एक एक दे रहा है तो फिर वो उसमें फिर वो आप जो अगर वन टू वन वाला जो रिलेशनशिप है, फिर वो सूट नहीं करता है, क्योंकि पासपोर्ट और पर्सन में वन टू वन क्लियर है। बट कस्टमर्स और ऑर्डर में अगर आप वन टू वन को करेंगे, क्लब करेंगे, तो उसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कस्टमर है और हम एंटिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे वन टू वन में क्या थी, पर्सन और पासपोर्ट की एंटिटी थी, वहाँ पे तो वन टू वन की रिलेशनशिप पॉसिबल है। बट हमारी एंटिटी चेंज हो गई, हमारी अब कस्टमर है और ऑर्डर है। तो अब चूंकि हमें यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप दिखाना है, तो इसलिए हमने क्या लिया, एंटिटी को चेंज करना पड़ा। तो अब हमारे पास एंटिटी क्या है, कस्टमर और ऑर्डर। तो वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर, दैट इज द टाइप वन टू मेनी रिलेशनशिप। नाउ मेनी टू वन रिलेशनशिप, स्टूडेंट है, चेंज कर दिया यहाँ पर एंटिटी, स्टूडेंट और कॉलेज, क्योंकि हमें मेनी टू वन रिलेशनशिप दिखानी है। तो मेनी स्टूडेंट कैन स्टडी इन अ सिंगल कॉलेज, मेनी स्टूडेंट कैन स्टडी इन अ सिंगल कॉलेज, दिस इज कॉल्ड मेनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा आपका है मेनी मेनी टू मेनी, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट। तो मेनी स्टूडेंट हैज बीन असाइन मेनी प्रोजेक्ट्स, कई सारे प्रोजेक्ट हैं और कई सारे प्रोजेक्ट को कई सारे स्टूडेंट्स को असाइन किए गए, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो द कंक्लूजन इज दैट कि इट विल डिपेंड ऑन द योर डेटाबेस डिजाइनिंग। जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे कि आपको रिलेशनशिप, जो एंटिटी आप ले रहे हो, उनकी रिलेशनशिप इन चारों में से कौन सी जो है सुटेबल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको रिलेशनशिप दिखानी पड़ेगी। अगर आप दिखाएंगे नहीं, और अगर आपका ये क्लियर व्यू नहीं है कि यहाँ पर वन टू वन होगी या वन टू मेनी होगी या मेनी टू मेनी होगी, तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए रिलेशनशिप का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर आप ER को, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। Now again, in a one slide, I want to show you the symbol which is used for making the ER model, right? तो entity type क्या हो जाएगा, rectangle। वीक एंटिटी को, आप वीक अभी एंटिटी हम बात करेंगे, वीक एंटिटी को कैसे हम करते हैं, उसको हम डबल रेक्टेंगल के थ्रू करते हैं। रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप में दिखाते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है आपको, है ना, यानी कि वो इन्वॉल्व है एंटिटी या नहीं है, उसका पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए हम डबल डायमंड शेप यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल, की एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल एंड अंडरलाइन, मल्टी वैल्यूड के लिए डबल ओवल, और कंपोजिट के लिए इस तरह से लास्ट वाला जो एक ओवल है, तो एक ओवल से रिलेटेड मल्टीपल ओवल्स आप अटैच करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग द ER स्कीमा, राइट। तो इसको सिंबल को लिखने के बाद ही पता चल जाए, कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला यूज़ किया गया है सिंबल, तो इसका मतलब है ये है, राइट। जो पीछे स्लाइड में जो यहाँ पे सिंबल है, उसी को यहाँ पर वन बाय वन बताया गया है कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एंटिटी सेट, एलिप्स एट्रीब्यूट्स, डायमंड रिलेशनशिप सेट, लाइंस लिंक एट्रीब्यूट, लाइंस जो होती हैं वो लिंक करती हैं एक दूसरे को एंटिटी सेट से, डबल एलिप्स मल्टी वैल्यूड, डैश्ड राइट एट्रीब्यूट्स, डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी सेट, डबल लाइंस मीन टोटल पार्टिसिपेशन। हाँ, टोटल पार्टिसिपेशन जो टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर जो डबल डायमंड है, इसका मतलब है कि टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप, यानी कि उस एंटिटी का टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बोले, these are the all means notations or symbols you can say used for making the ER diagram, right। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ हमने अब की एट्रीब्यूट्स की बात करी, एंटिटी सेट की बात करी, अब थोड़ा सा एक सिंपल डायग्राम भी देख लेते हैं कि यहाँ पर सिंपल डायग्राम कैसे बनता है हमारा। दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम।
तो इसमें एक सैम्पल आई डायग्राम दिखा हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट की क्या क्या हो सकती है, आपकी स्टूडेंट आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, और स्टूडेंट नेम हो सकता है। तो स्टूडेंट तो एक आपकी क्या हुई, एंटिटी हुई। और ये क्या हुई, उसकी स्टूडेंट आईडी। आईडी क्या हो सकती है आपकी, वो अंडरलाइन होनी चाहिए, यहाँ पर की एट्रीब्यूट होना चाहिए। स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, स्टूडेंट। और चूंकि हम डायमंड शेप में क्या दिखाते हैं, उसका हम रिलेशनशिप दिखाते हैं। रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टडी इन। और दूसरा एट्रीब्यूट क्या हमारे पास है, सो दूसरी एंटिटी क्या है, कॉलेज। तो कॉलेज की अपनी एक आईडी हो सकती है, कॉलेज का अपना नाम हो सकता है। दीज आर अगेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉलेज, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम for the clear understanding, use of the entity, use of the attribute, use of the relationship, use of the multi-value, right? Now again entity के बारे में हम बता चुके हैं आपको। अब वीक एंटिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज द वीक एंटिटी, राइट। वीक एंटिटी एक ऐसा एक एंटिटी है जिसका मतलब, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिसको मतलब यूज़ कर भी सकते हैं आप, और जिसको यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, या इसको हम टेक्निकल डेफिनेशन में अगर देखें तो एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जिसको आप जो है यूनिकली उसके एट्रीब्यूट से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे बैंक अकाउंट है और आपका बैंक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट, अकाउंट क्या हो जाएगा। अब एक बैंक अकाउंट को हम वीक एंटिटी क्यों करें, बैंक अकाउंट को हम जो है, क्योंकि अकाउंट, बैंक अकाउंट का क्या, बैंक अकाउंट एक वीक एंटिटी है क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, राइट। बैंक अकाउंट तो क्या हो जाएगा आपका, एक प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक है, तो एन एंटिटी दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट एंड रिलाइज ऑन द रिलेशनशिप with other entity is called the weak entity. The weak entity is represented by a double rectangle. For example, a bank account cannot be uniquely identified without knowing. जी हाँ, वीक एंटिटी का मतलब होता है कि अब जैसे बैंक अकाउंट आपका कोई खोलने वाला है, आप कस्टमर है, बीइंग ए कस्टमर आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक अकाउंट आपका वीक एंटिटी है क्योंकि बैंक अकाउंट के, बैंक का अकाउंट ओपनिंग होने से पहले भी बैंकर्स को बहुत सारी डिटेल आपको जानने की ज़रूरत होती है उसको, बिना उसके आपका जो है अकाउंट नहीं खुल सकता। तो बैंक अकाउंट सिंपली अ वीक एंटिटी, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर आपका जो कंप्लीट होता है प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग द बैंक टू विच अकाउंट बिलोंग्स। सो बैंक अकाउंट इज वीक एंटिटी। ठीक है, कि किस बैंक से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप मान लिया कि आपका पीएनबी में हो सकता है, एसबीआई में हो सकता है, तो जब तक आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आपको बताएंगे आप, तब तक क्या होगा, उसके आपके जो बैंक अकाउंट है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वीक एंटिटी, राइट। जिसके बारे में मैं फिर से बता दूं आपको कि एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में भी कई सारे फैक्ट एसोसिएटेड होते हैं, बिना उनके आप इस एंटिटी को कंप्लीट नहीं कह सकते। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड द वीक एंटिटी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बैंक और लोन का लेते हैं। लोन क्या है, आप बैंक में लोन पास कराने जाते हैं तो ऐसे ही लोन आपको कोई नहीं दे देता है। लोन कैसी हुई, वीक एंटिटी। क्यों, क्योंकि लोन लेने के लिए से आपसे पूछते भी है कि भाई आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, और अ, कितना मिल सकता है, आप कितना जो है कितने दिनों में पे करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स रिलेटेड है। ठीक है, तो लोन इज ऑल्सो अ वीक एंटिटी फॉर द बैंक। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ ई टू इन आर। तो एक सिंबल के थ्रू बताया गया है कि टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एक कार्डिनलिटी रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं, हमने पढ़ा भी था कि जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कार्डिनलिटी रेशियो या एक सिंबल फॉर्म में 1 to n या इस टाइप से भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। या उसके हम नंबर डाल देते हैं या n लिख देते हैं, जैसे 1 to 1 हमने पीछे लिखा हुआ है, इस टाइप की जो चीज़ें लिखते हैं हम, दिस आल्सो नोन एज द कार्डिनलिटी, नंबरिंग इसकी। नाउ टॉक अबाउट द टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटिटी सेट। अब टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट रिप्रेजेंट्स दैट ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट मस्ट हैव एट लीस्ट वन रिलेशनशिप। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कम से कम एक उसका रिलेशनशिप जो है वो जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन रिलेशनशिप मस्ट बी देयर। फॉर एग्जाम्पल इन अ बिलो डायग्राम, ईच कॉलेज मस्ट हैव एट लीस्ट वन एसोसिएटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसको वीक एंटिटी टोटल पार्टिसिपेशन किसको बनाया,
EI diagram with total participation of the college entity set in study in relationship set. ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एंटिटी है, उसके अपने एट्रीब्यूट हो गए. स्टडी इन क्या हो जाएगा, एक हमारा पास एक रिलेशनशिप है. और कॉलेज, कॉलेज को हमने क्या किया, टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कम से कम एक कॉलेज में स्टूडेंट तो जरूर होगा. तो ये क्या है, एक टोटल पार्टिसिपेशन क्या कहलाएगा. ठीक है, अब कॉलेज के अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और कॉलेज आईडी, कॉलम नेम. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटिटी सेट. राइट. मैपिंग कार्डिनलिटी या इसको मैपिंग रेशियो भी बोलते हैं, जैसे लास्ट में अभी मैं देखा था. मैपिंग कार्डिनलिटी या मैपिंग कार्डिनलिटी रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटी टू विच अदर एंटिटी कैन बी रिलेटेड वाया रिलेशनशिप. रिलेशनशिप्स के थ्रू आपकी दूसरी एंटिटी किस तरह से रिलेटेड है, वन टू मैनी, मैनी टू वन, तो उसको हम कार्डिनलिटी रेशियो या मैपिंग कार्डिनलिटी के नाम से भी जानते हैं. इट कैन बी यूज इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप सेट और एनी डिग्री. राइट. तो 1:1 का मतलब 1 to 1, 1 to n का मतलब है 1 to many, n to 1 का मतलब क्या है, many to 1, एंड m to n का मतलब क्या है, many to many. ठीक है, तो वी कैन शो आवर मैपिंग कार्डिनलिटी with the help of these type of notations. राइट. यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया गया है कि एक इंडियन सिटीजन, एक एंटिटी है, एक आधार नंबर है. इंडियन सिटीजन, वन सिटीजन, एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ आधार नंबर. ठीक है, एंड वन आधार नंबर विल बी इशूड बाय द वन सिटीजन. ठीक है, मल्टीपल नहीं हो सकता. तो ये 1 to 1 का एक एग्जाम्पल है, तो उसको आप देख लेंगे. 1 to many का, वन सिटीजन हैज़ अ मेनी मोबाइल नंबर. एक सिटीजन है, उसके पास कई सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 to many. मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप क्या है, बुक और ऑथर, दीज आर द टू एंटिटीज. तो मीन्स क्या है, 1 to 1 का, मेनी टू मेनी का, तो मेनी बुक्स हैज़ अ मेनी ऑथर. एक बुक है आपकी सी प्रोग्रामिंग की, तो उसको सी प्रोग्रामिंग की बहुत सारी बुक है. ठीक है, और उन बहुत सारी बुक को क्या हुआ है, कई सारे ऑथर ने अलग अलग अपने अपने लिखा हुआ है. ठीक है, तो मेनी बुक्स हैज़ अ मेनी ऑथर्स. ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि एक यूनिक ऑथर है सी DBMS की या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी एक ही ऑथर ने लिखा हुआ है. तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इन DBMS इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी. ठीक है, बुक है, एक एंटिटी है, उसके कई सारे इंस्टेंस है. बुक है, तो बुक आपकी सी प्रोग्रामिंग की भी है, आपकी DBMS की भी है, और XYZ कई सारे भी हैं. ठीक है, वन इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी, दैट इज बोथ द एंटिटी हैव मेनी रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. ठीक है, तो बुक है और ऑथर है, दोनों के बीच में मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप. राइट. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम लिखा हुआ है, थोड़ा सा वर्ड है, लेकिन इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है. एम्प्लॉई एंटिटी है, एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ज़्यादा एट्रीब्यूट्स. और उसका रिलेशनशिप यहाँ पर है, सुपरविजन. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है. अभी अभी चूँकि आपको इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में जो EI डायग्राम का जो व्यू आता है वो कैसे आता है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप कैसे बना सकेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने आपको व्यू दिया हुआ है. तो एम्प्लॉई ये आपके डिपेंड्स ऑन और डिपेंडेंट, और ये आपको दिया हुआ है कि कई सारे रिलेशनशिप हैं, वर्क ऑन, ये सब क्या है, रिलेशनशिप्स हैं. तो इसको आप तब बना पाएंगे जब थोड़ा सा आप सिंपल जब EI डायग्राम आप बना पाएंगे, तो ही आप इसको फिर कॉम्प्लेक्स डायग्राम की तरफ मूव कर सकते हैं. आपको बैंक का दिया हुआ है, जैसे बैंक हमारी एक एंटिटी है, तो बैंक का अपना एक कोड होता है, EI डायग्राम फॉर बैंक डेटाबेस. थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग. बैंक एक हमारे पास क्या है कि बैंक का अपना कोड हो सकता है, तो एक प्राइमरी की है, नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, और ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन है. यानी कि ऐसी कोई भी ब्रांच बैंक नहीं है जिसकी की वजह कोई एक ब्रांच ना एग्जिस्ट करती हो. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन. 1 to n का मतलब क्या है कि किसी भी बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांच हो सकती है, तो 1 to many का रिलेशनशिप हो गया. अब यहाँ पर डबल डबल सिंबल क्या बताता है आपको, कि डबल सिंबल किस लिए था हमारा, आप फिर से देख लें. ये आपका है वीक एंटिटी. ठीक है, वीक एंटिटी क्या बताएगी आपको, डबल सिंबल को. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखिए आप लोग. तो ये क्या है, ब्रांच नेम. ब्रांच नेम आपकी वीक एंटिटी है, तो वीक एंटिटी क्यों कहलाएगा हमारा, ब्रांच, सॉरी बैंक ब्रांच. तो मतलब कि कम से कम जो आपका उसके अंदर जो है
ब्रांच जो बैंक का जो ब्रांच है वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स। हो सकता है कि ऐसी बैंक है जिसका कोई ब्रांच ही ना हो, तो वो क्या कहलाएगी आपकी वीक एंटिटी। और उसके अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप आपका टोटल पार्टिसिपेशन है। तो उसके बाद कस्टमर है, कस्टमर कैसे जुड़ा है, आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और कस्टमर की अपनी डिटेल है, उसका एसेसन नंबर है, उसका फ़ोन नंबर है, एंड दे आर रिलेटेड विद द सम अदर रिलेशनशिप, राइट। तो दिस इज द ईआर डायग्राम फॉर द बैंक डेटाबेस। और कुछ केस स्टडी है ये आप अपने यूज़ के लिए कि आप कैसे डेटाबेस बना सकते हैं। तो डिज़ाइन ए डेटाबेस कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग फैक्ट्स: ट्रेन आर नाइदर लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन बट नेवर बोथ। छोटा छोटा डायग्राम इसके लिए आपको बनाना है, छोटे छोटे ER मॉडल बनाने हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम केस स्टडी फॉर योर वर्क। So thank you so much. We will discuss the generalization and aggregation concept in the next lecture.